Hello students, now I am starting exercise 13.6. So in this exercise we have to discuss about volume of cylinders. So starting from first question, that is the circumference of the base of a cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? So base दिया हुआ है, base का circumference तो cylinder का जो base होता है that is a circle. Here I am drawing a diagram. So this is the cylinder and its base will be a circle. So it is circle and its circumference is given. So circumference of base of cylinder, that is 2 pi r. The formula, because it is a circle, base है वो क्या है, एक सर्किल है, इसलिए इसका circumference का formula 2 pi r हो जाएगा. ठीक. Now value is given, circumference that is given 132 centimeter. So put the value 132 equals to 2 pi, that is 22 upon 7 into r. From here we have to separate r. So r equals to 132, this 7 comes into multiply and these 2 and 22 means 44 comes in divide. So firstly we cancel it. So 11 4 ja 44, 11 1 ja 11, 2 22, 11 2 ja 22, 4 3 ja 21. So 7 into 3 means 21. That means we will get here r equals to 21 centimeter. After this, and its height is 25, h is given 25 centimeter, it is given, and we have to find the volume of water. Can it hold? How much? Liter. So volume of water in this cylindrical vessel. जो cylindrical vessel है उसमें in the cylindrical vessel. तो cylindrical vessel में कितना वॉल्यूम आएगा, मीन्स इसके वॉल्यूम के इक्वल, मीन्स पाई आर स्क्वायर एच, that is equals to pi r square h. Now putting the values, so pi that is 22 upon 7 into r square that is 21, so 21 into 21 into h that is 25, it is given 7 3 ja 21. Now 22 into 3 66 into 21 into 25. If we multiply these all, then we will get 34,650 centimeter cube, and we have to find this volume into liter. It is given, so we know 34,650 divided by 1000 and it is liter. Why? Because since 1000 centimeter cube equals to 1 liter, so if we convert 1 centimeter cube into liter, so 1000 goes to divide, means 1 upon 1000 liter. So we divide it by 1000. Now 3 digits, so decimal before 3 digits means 34.650 liters. Clear? Now next question, second. The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of the wood has a mass of 0.6 gram. So firstly we have to find volume of cylindrical. So cylinder है, cylindrical pipe है, but वो कैसा है, hollow cylindrical pipe है. ठीक है. And about this side, so here inner and outer diameters आपको मिल जाएंगे. Inner diameter given है 24 centimeter, means this one is 24, and outer that is 28 centimeter, means this one 28 centimeter, and height दोनों की सेम होगी, that is 35 centimeter. Okay, so height is 35 centimeter, it is 35. Clear? Now we have to find volume of मेटल का बना हुआ है, जो भी मेटल होगा, जो भी शीट है, उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है. ठीक है, मीन्स हमें आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम करना है. जिसकी रेडियस है इनर और आउटर, उनको हम स्मॉल आर और कैपिटल आर एज्यूम कर ले रहे हैं. तो इनर रेडियस दिस वन, इसको हमने एज्यूम कर लिया स्मॉल आर, एंड आउटर रेडियस हम यहाँ शो कर दे रहे हैं, दैट इज कैपिटल आर. क्लियर? सो स्मॉल आर इफ वी फाउंड, दैट इज इनर डायमीटर अपॉन 2 मीन्स 24 अपॉन 2, दैट विल बी 12 centimeter. Outer radius means 28 upon 2, that will be 14 centimeter, and height is given 35 centimeter.
क्लियर, सेपरेट आप वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं, देन सब्ट्रैक्ट और डायरेक्टली, क्लियर, बोथ सब्ट्रैक्ट इन द सेम. सो वॉल्यूम ऑफ वुड इन सिलेंड्रिकल पाइप, वुड का बना हुआ है. सो वॉल्यूम ऑफ वुड इन द सिलेंड्रिकल पाइप, सिलेंड्रिकल पाइप. सो वॉल्यूम क्या होगा, आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. तो आउटर वॉल्यूम के लिए आउटर रेडियस यूज हो जाएगी पाई आर स्क्वायर एच, माइनस इनर के लिए रेडियस चेंज होगी, केवल हाइट सेम रहेगी. हियर समथिंग इज कॉमन, सो पाई एच इज कॉमन. व्हाट इज लेफ्ट, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर. थोड़ी कैलकुलेशन और इजी कर सकते हैं आप इसे. कैसे, पाई एच ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मीन्स वी कैन कन्वर्ट इनटू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी. So we can write it capital R plus small r and capital R minus small r. Now we can put the values. So here pi value I think it should be given, not given. Pi is not given, so 22.7 use. 22.7 into h, that is 35, into capital R plus small r, that is 14 plus 12. 14 plus 12, capital R minus small r, so 14 minus 12. 7 5 ja 35, 22 5 ja 110, 14 plus 12 is 26, 14 minus 12 is 2. क्लियर, 26 2 जा 52, 52 का मल्टीप्लाई 110 से करना है तो 0, 52 1 जा 52, 5 कैरी एंड 52 57. क्लियर, सो 5720 सेंटीमीटर क्यूब. एंड मास इज गिवन ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब. इट इज गिवन दैट सिंस मास of 1 centimeter cube wood, that is given 0.6 gram. Therefore mass of how much centimeter cube, volume 5720 centimeter cube wood equals to, we have to multiply 5720 into 0.6 gram. Now if you multiply, so 60, 6 to 12, 1 7 42 and 143, 4 34. डेसिमल 1 डिजिट बिफोर, तो 3432 ग्राम. तो आंसर ग्राम में जब 3000 से ऊपर हम से किलोग्राम में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, मीन्स वी हैव टू डिवाइड इट बाई 1000. डेसिमल 0 हटा दिया है, सो डिवाइड बाई 1000 एंड इट विल बी टू कन्वर्ट इट इनटू किलोग्राम. सो 3 zeros मीन्स डेसिमल शिफ्ट फ्रॉम RHS to LHS to 3 digits. So 3.432 kg. This is the mass of the wood in this question, in this pipe. Now third question is, a soft drink is available in 2 packs. 2 पैक में एक सॉफ्ट ड्रिंक अवेलेबल है. A tin can with a rectangular base of length 5 cm and width 4 cm, having a height of 15 cm, and a plastic cylinder with circular base of diameter 7 cm, diameter is given 7 and height 10 cm. उसकी हाइट कितनी है, 10 cm given है. क्लियर. आफ्टर दिस find the mass, which container has greater capacity and by how much. किस कंटेनर की कैपेसिटी ज़्यादा है और कितनी ज़्यादा है, ये भी आपको फाइंड करना है. तो दोनों के हमें वॉल्यूम्स फाइंड करना है. कैपेसिटी मीन्स वॉल्यूम, आप चाहो तो लीटर में भी फाइंड कर सकते हैं या सेंटीमीटर क्यूब में. हमें केवल कंपेयर करना है, तो हम लीटर में से कन्वर्ट नहीं करेंगे. ठीक है. कंटेनर 2 टाइप के हैं, एक सिलेंड्रिकल है और एक क्यूबॉइडल है. क्योंकि 3 डायमेंशन अलग अलग गिवन है, तो क्यूबॉइडल, और अगर सेम डायमेंशन होती, एक साइड होती, तो वो क्यूबिकल हो जाता. तो फर्स्ट कंटेनर है, टिन कैन है, तो टिन कैन का वॉल्यूम हम फाइंड कर रहे हैं. सो क्वेश्चन थर्ड, वॉल्यूम ऑफ टिन कैन, दैट इज इक्वल्स टू LBH. सो लेंथ इज गिवन हाउ मच, यस 5 4 and 15. 5 into 4 into 15, 5 4 ja 20 into 15, that is 300 centimeter cube. एंड सेकेंड पार्ट इज सिलेंड्रिकल है, प्लास्टिक सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम फाइंड करना है. सो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टिक सिलेंडर. नाउ फॉर दिस इट इज सिलेंड्रिकल, सो फॉर्मूला विल बी पाई आर स्क्वायर एच, पाई 22.7 into r square. Radius is given, diameter is given 7, so radius will be 7/2. So you are putting 7/2 into 7/2 because r square is here, into h, height is I think 10. Yes, it is 10. Now simplify, 7 1 ja 7, these are cancelled.
2 5 जा 10 and 2 11 जा 22. So 11 5 जा 55 into 7, that is 385 centimeter cube. These both the volumes. So which one is greater? Capacity, plastic cylinder. So here, और डिफरेंस भी फाइंड कर लीजिए कौन सा कितना है. तो पहले हम डिफरेंस फाइंड कर ले रहे हैं, देन वी आर राइटिंग द लैंग्वेज. सो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स दैट इज 385 minus 300, that will be 85 centimeter cube. So here we are writing the plastic cylinder has greater capacity. ये पूछा हुआ ना किसकी ग्रेटर कैपेसिटी है, ग्रेटर कैपेसिटी, एंड बाय हाउ मच, तो बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब, देन दैट ऑफ सेकेंड शेप इज टिन कैन, दैट ऑफ टिन कैन. टिन कैन से 85 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ज़्यादा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, that is if the lateral surface area of a cylinder is 94.2 centimeter square and its height is 5 centimeter, then find radius of its base and its volume. CSA is given 94.2. So firstly we are putting the formula CSA of cylinder, that is 2 pi RH, and values which are given, CSA is given 94.2. Here the value of pi is given 3.14, into R we have to find, and H 10 or 5, H is 5, okay, it is 5 centimeter. So now 2 5 are 10 into 3.14 means we can put it 31.4 into R. Now if we separate R, 31.4 comes in divide, so 94.2 upon 31.4 equals to R. Decimal removed, simply we are seeing 3 3 are 9, 14 3 are 42, so 3 14 1 ja and 3 14 3 ja. That means here we will get R equals to 3 centimeter. First part is done. Now in second part we have to find volume. It is the first part. In second part we have to find volume. So volume of cylinder. Now the formula for volume, that is pi R square H, and the value of pi it is given 3.14 into R square. R is 3, so 3 square, 3 into 3 into H, that is 5. 3 3 जा 9 and 5 जा 45. 45 को मल्टीप्लाई करना है 3.14 से, so 45 4 जा 180, 18 कैरी and 45 63, 6 कैरी, 135 and 6 141. Decimal before 2 digits, so 141.30 centimeter cube. Now next question is fifth. So now fifth question is, it cost rupees 2,200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of rupees 20 per meter square, find the inner curved surface area. तो कॉस्ट अगर हम फाइंड करते हैं तो सरफेस एरिया को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, रेट ऑफ पेंटिंग से. ठीक है, अगर पेंट करना है तो अगर हम फाइंड करें यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, तो हमें क्या करना होता है, जो भी सरफेस एरिया जिस पे आपको पेंट करना है तो वो क्या है, इनर सरफेस, क्योंकि इनर सरफेस पे करना है, इनर कर्व सरफेस, या सी ऐसे कह सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया, और इसको मल्टीप्लाई किससे करना होता है, रेट ऑफ पेंटिंग. एंड दीज बोथ आर गिवन, सो वी कैन सेपरेट इनर सी ऐसे, रेट ऑफ पेंटिंग. नाउ पुटिंग द वैल्यूज. So total cost of painting, it is given 2,200 equal to inner CSA, we have to find inner CSA, I am writing in short, curved surface area, into rate of painting is given 20, so 20 comes in divide, means we can write inner CSA, that is equals to 2,200 upon 20, 0 0 cancel, 2 से cancel हो जाएगा, so 110 centimeter square. Centimeter? No, meter square. It is in meter. Okay. Now second part is we have to find radius of the base. तो बिल्कुल सेम इस क्वेश्चन की तरह हो जाएगा. रेडियस ऑफ द बेस फाइंड करने के लिए हमें इसी का फॉर्मूला लग जाएगा. तो सेकंड, इट इज़ फर्स्ट पार्ट. नाउ इन सेकंड पार्ट
again we are putting the formula for inner CSA, that is 2 pi RH, and putting the value. CSA is given 110 equals to 2 pi, that is 22 upon 7 into R we have to find, and into H it is given how much? H is given 10 मीटर डीप है, ठीक है। नाउ सेपरेट कर लेंगे R को, तो 110 इंटू 7 इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, अपॉन 2 इंटू 22 44 एंड इंटू 10, 0 0 कैंसिल, 11 1 11 4 जा 44 इक्वल टू R था, मीन्स फ्रॉम हेयर वी पुट R इक्वल्स टू 7 अपॉन 4 सेंटीमीटर। It is second part done. Now the third part is we have to find the capacity of the vessel. इसकी कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैपेसिटी ऑफ द वेसल, तो ये क्या कौन सी शेप है? सिलेंडर है। कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर? दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। सो वी आर सॉल्विंग दिस पार्ट हेयर। कैपेसिटी ऑफ द वेसल, so cylindrical vessel, that means pi r square h. The value of pi is 22 upon 7 into r square, that is r is 7 upon 4, so we put in twice, 7 upon 4 into 7 upon 4 into h, that is given 10. Okay, now 7 1 is 7, these are cancelled. Here 1 4 we cancel out by 2 to the 4, 2 5 ja 10, 2 1 ja 2, 2 11 जा 22, तो 11 7 जा 77 इंटू 5 385 अपॉन 4, 385 अपॉन 4 if we divide it 96.25 मीटर क्यूब, एंड वी हैव टू फाइंड कैपेसिटी। तो हमें लीटर या किलो लीटर किसी में भी कन्वर्ट कर लेंगे, हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, मीन्स 96.25 इंटू 1000 लीटर, दैट मीन्स 96,250 लीटर्स। अगर हम इसे किलो लीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो इसे 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, सो इट विल बी अगेन 96.25 किलो लीटर। चलिए कन्वर्ट कर ही दे रहे हैं। सो 96250 डिवाइड बाई 1000 किलो लीटर मीन्स 96.25 किलो लीटर। क्लियर? हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट ये यूनिट हम लर्न नहीं करते एक्चुअली। मीटर क्यूब 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 किलो लीटर, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं। ओके, रॉन्ग नहीं होगा। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 6th। सो आई एम रेजिंग इट। 6th क्वेश्चन, जस्ट वेट। Question number 6 is the capacity of a closed cylindrical vessel of height 1 meter is 15.4 liter. How many square meters of metal sheet would be needed to make it? इसको बनाने के लिए कितना स्क्वायर मीटर मेटल चाहिए होगा? तो जो मेटल रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा एक्चुअली? टी एस ए के इक्वल, क्योंकि क्लोज सिलिंड्रिकल वेसल है। तो पहले वॉल्यूम हमें गिवन है, हाइट गिवन है, तो हम उससे आर रेडियस फाइंड कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, वॉल्यूम ऑफ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल टैंक, इसको कैपेसिटी भी लिख सकते हैं, सिलिंड्रिकल टैंक, दैट इज गिवन 15.4 लीटर। तो लीटर को हम इसे मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहे हैं, सो 15.4 अपॉन 1000 मीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाई मल्टीप्लाइंग बाई 1000, बट एक यूनिट जो है एच जो गिवन है हाइट वो 1 मीटर में है, तो हम इसे मीटर में कन्वर्ट किया है। और फॉर्मूला क्या होता है इसका? LBH। नाउ नो सॉरी, इट इज सिलेंडर, सो फॉर्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच। पुटिंग द वैल्यूज, पाई इज 22/7 इंटू आर स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड एच इज 1, दैट इज इक्वल्स टू 15.4 अपॉन 1000। हियर डेसिमल वी पुट, सो 1 decimal removed. Now r square, that will be 154 into 7 upon 10,000 into 22. 22 1 जा 22 7 जा 154, 7 7 49, so 49 upon 10,000. We take square root, r square है तो r यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 49 का रूट हो गया 7, 10,000 का रूट 100, so 7 upon 100 मीटर, और we can put it 0.07 मीटर. It is radius.
नाउ वी हैव टू फाइंड TSA, है ना, किसका बनाना है इसको, एरिया ऑफ मेटल शीट ना, यस, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट, तो एरिया ऑफ मेटल शीट लिख दीजिए, एरिया ऑफ मेटल शीट required to make the tank required equals to TSA of cylinder. So what is the formula for TSA? That is 2 pi r within bracket h plus r. Now putting the values, so 2 pi, that is 22/7 into r, you can put 7/100 or 0.07, so I am putting in decimal. H plus r, h is 1 plus 0.07, 7 1 just 7, so 0.01. Now 44 into 0.01, 0.44 into 1.07, so if we multiply it, then we will get 0.4708, 0.4708 meter square. Clear? Now move to 7th question. So 7th question is a lead pencil of a lead pencil consists of a cylindrical wood with a solid cylinder of graphite filled in the interior. The diameter of the pencil is 7 mm and the diameter of the graphite is 1 mm. If the length of the pencil is 14 cm, find the volume of the wood and that of the graphite. तो हमें दोनों वॉल्यूम सेपरेट फाइंड करना है एंड देन सब्ट्रैक्ट करना है, ओके, क्योंकि हमें अलग अलग भी फाइंड करना है. ग्रेफाइट का जो वॉल्यूम है वो इनर वॉल्यूम होगा और वुड के लिए हमें आउटर में से इनर को माइनस करना हो जाएगा, ठीक है. सो हमें सेपरेट दोनों वॉल्यूम फाइंड करने हैं. यूनिट चाहे आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो या फिर मिलीमीटर में, ठीक है, किसी में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं सॉल्व. सो इट इज़ this type of, like this is graphite rod and outer of this there is a wood. So its diameter is 1 mm, this one, and this one is 7 mm millimeter, and this height is given 14 centimeter. Clear? So ये small radius जो है इसको हम small r कह दे रहे हैं एंड आउटर रेडियस में यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, इसको कैपिटल आर कह दिया मैंने, ठीक. सो स्मॉल आर और कैपिटल आर इनको हम लिख देंगे. क्वेश्चन नंबर है ये 6 है, 6 है 7th है, इट इज 7th क्वेश्चन, ओके. नाउ इन दिस फर्स्टली हाइट दैट इज गिवन 14 सेंटीमीटर. नाउ स्मॉल आर दैट इज 1 mm था, तो 1/2 mm मिलीमीटर, तो हम इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स डिवाइड बाई 10. So 1/2 into 10 centimeter means 1/20 centimeter. Now capital R, that is diameter is given 7 mm, so 7/2 mm. If we convert into centimeter, so divide by 10 centimeter, so 7/20 centimeter. Clear? Now we have to find both the volumes separately because we have to find inner volume also. If we have to find directly the volume of wood, then we found it directly, means in the same step subtract both the volumes, but here we have to find separate. So first volume of graphite, जो अंदर पार्ट है वो ग्रेफाइट है, तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये सॉल्व हो जाएगा. यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट दैट इज इक्वल्स टू इनर वॉल्यूम. तो इनर वॉल्यूम क्या होगा, पाई स्मॉल r square h. The value of pi is 22/7 into r square. R is 1/20, so 1/400, 20 का स्क्वायर 400 into h. H is 14. 7 2 जा 14. 2 से देखो 400 कैंसिल हो जाएगा, 200 आ गया. यहाँ से 2 से हमसे 22 को 11 और 200 आ गया. तो 11/100 मीन्स वी कैन पुट 0.11 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज योर सेकेंड पार्ट, क्योंकि हमें सेकेंड पार्ट में फाइंड करना था ग्रेफाइट का वॉल्यूम और फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड करना था वॉल्यूम ऑफ वुड. तो वुड के लिए हमें पहले आउटर वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा. तो पहले हम इसको आउटर वॉल्यूम को फाइंड कर रहे हैं. आउटर वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू पाई कैपिटल R square h. पाई इज 22/7, कैपिटल R square रेडियस इज 7/20, सो इसका स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49/20 का स्क्वायर 400 इंटू एच दैट इज़ 14. 7 2 जा 14, 2 आ गया. 2 से कैलकुलेशन बिल्कुल सेम मैंने किया है, इस 49 को टच नहीं कर रहा हूँ. 2 से 400 कैंसिल हुआ 200,
फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 100 और 2 से यहाँ कैंसिल होगा तो 11। देखो 11/100 तो सेम था, यानी कि 0.11। मल्टीप्लाई किससे करना है हमें 49 से, तो 11 9 99, 9 कैरी 44 और 9 53 एंड डेसिमल बिफोर 2 डिजिट्स क्योंकि 2 zeros हैं यहाँ पे। 5.39 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इक्वल्स टू आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, सब्ट्रैक्ट बोथ द वॉल्यूम्स, so 5.39 minus 0.11, on subtracting we will get 5.28 centimeter cube. That is question 7. Now move to next question, that is 8th. A patient in a hospital is given soup daily in a cylindrical bowl of diameter 7 centimeter. If the bowl is filled with soup to a height of 4 centimeter, how much soup the hospital has to prepare daily to serve 250 patients? 250 पेशेंट को सर्व करने के लिए कितना सूप बनाना पड़ेगा, तो हमें एक का वॉल्यूम फाइंड करना है एंड देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाई 250। क्लियर? तो एक बाउल जो है वो किस शेप में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, और उसकी हाइट हमें नहीं दी हुई कितनी है, बट ये गिवन है कि जो सूप हम दे रहे हैं जिस सिलेंडर में, उस सिलेंडर में उसको 4 सेंटीमीटर की हाइट तक हमने फिल किया हुआ है। ये गिवन है। फॉर एग्जाम्पल ये सिलेंडर है और ये सिलेंडर मान लो 4 सेंटीमीटर से बड़ा है, जिसकी हाइट है वो 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। ठीक है, डायमीटर कितना गिवन है? डायमीटर इज गिवन 4 सेंटीमीटर, आई थिंक, नो 7 सेंटीमीटर। डायमीटर इज गिवन 7 सेंटीमीटर। क्लियर? सो वी फाउंड रेडियस आर, दैट विल बी 7/2 एंड हाइट जो भी होगी, बट हमें जो फिल करना है, मान लो यहाँ तक अगर मैं ऐसे फिल करूँ सूप से, पूरा तो फिल नहीं करेंगे, ठीक है, तो अगर ये मान लो इतना फिल किया, तो ये जो हाइट दी हुई है, ये हाइट केवल आपको 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो हमें ऊपर वाले सिलेंडर का से मतलब नहीं है क्योंकि वो तो खाली है, हमें केवल ये सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है जितना फिल है उसमें। तो रेडियस अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो डायमीटर 7 था, रेडियस 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, और हाइट जो है वो सिलेंडर जहाँ तक सूप है वहाँ तक की हाइट 4 सेंटीमीटर। क्लियर? हम यहाँ तक भी मान सकते हैं सिलेंडर, ऐसा कुछ नहीं है, बट उन्होंने हाइट नहीं दी हुई है तो हमने मान लिया कि उससे बड़ा है, क्योंकि जब हम सूप सर्व कर रहे हैं, मान लो हम कोई चीज़ सर्व कर रहे हैं तो पूरा नहीं, ऊपर तक नहीं फिल करेंगे, कुछ ना कुछ खाली रखेंगे। ठीक है, ये मान के। सो वॉल्यूम ऑफ सूप इन वन बाउल, सिलेंड्रिकल बाउल है, सो वॉल्यूम इज पाई r², h पाई इज 22/7 इंटू r², r इज 7/2, सो इट्स स्क्वायर, वी पुट इट ट्वाइस इंटू h, दैट इज 4, 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। क्लियर? इसे कैंसिल, 22 7 जा 154 सेंटीमीटर क्यूब। 1 बाउल के लिए हो गया, और कितने बाउल हमें प्रिपेयर करने हैं? 250। क्यों? क्योंकि 250 पेशेंट्स हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सूप प्रिपेयर्ड फॉर 250 पेशेंट्स, क्योंकि यही हमें पूछा गया है लास्ट में, तो इस वॉल्यूम को मैं 250 से मल्टीप्लाई कर दें हैं, तो 250 इंटू 154 सेंटीमीटर क्यूब। अभी वॉल्यूम किस में है? सेंटीमीटर क्यूब में। लिक्विड है, हम इसे लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे लीटर में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। 250 इंटू 154 हमने मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब को अगर हम लीटर में कन्वर्ट करते हैं, सो वी हैव टू डिवाइड इट बाई 1000 एंड नाउ इट इज़ इन लीटर। 1 0 0 कैंसिल, 25 1 जा 25 एंड 25 4 जा 100। 4 से डिवाइड कर देंगे 154 को, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, 1 14, 2 7 जा 14, 77/2 मीन्स 38.5 लीटर। तो 38.5 लीटर जो सूप है वो हॉस्पिटल को प्रिपेयर करना होगा इसके लिए, एंड दिस एक्सरसाइज इज कंप्लीट।